So, good evening to all of you. Today, I have just tried to convince one message. Today, we are not having any type of presentations or some data feeding, but I like that we have to be have some dialogues between the our customer, friends, clients, and people are having lot of news flow from different types of the sources, TV channels, analysts, friend, and some other advisors also. So I think that we should have some dialogues between us that in this scenario, what we should do and what we should not do. These are the two main things. So first of all, I observe as per my experience of 25 to 30 years in stock market, I have seen 4 or 5 such type of market volatility during the when the BJP government has come down, when the Vajpayee government lost by one vote in the parliament, when the government SEBI has banned PE fund, when the Manmohan Singh came in the power second time, तो upper circuit, lower circuit, so 25 years, and last में जो हमने देखा है, that was the COVID situation. So I mean to say, in COVID situations and today's situations is entirely different. In COVID situations, what happened? Factory was closed, airline was closed, people are not moving here and there. So the production is down, consumption is down, and due to that, the company may be going loss or company may be in the not in profit. Some of the commodity may perish. So these are the types. But if you see the last 2 3 days market movement, the market is moving such like as it is like a COVID. Okay. But in these situations, nothing is happen for the industries, nothing is happen for the consumption, and nothing is happen for any international war or any type of the catastrophic effect. So the things are working normal, but the people are assuming lot many things by reading the news, by seeing the news, and by discussing with the friends. So these are the difficult time that what to do. So my first suggestions is that because I know that many people having the trading accounts, some people are involved in positional trade, some of the your family, friends, spouse, children, even some elderly people, they are involved in future and options also and in futures. My first advice that please avoid any type of the future and options conditions or positions other than hedge conditions. But in the hedge conditions also, the volatility VIX, which has increased around 37% in US, even in India today, the VIX has gone up around 45% or 47%. What do you mean by VIX? विक्स ये जो होता है वोलेटिलिटी को मेजर करता है कि अगर मार्केट में प्रेडिक्टिबिलिटी नहीं है तो विक्स बढ़ता है। विक्स जब भी बढ़ता है तो ऑप्शंस की प्राइस बढ़ जाती है। तो अगर कोई आपको टीवी पे बोलता है कि भाई आपको अगर डर लग रहा है और आप अपनी पोजीशन हेज करिए। अब हेज करने के लिए अगर मेरा प्रीमियम ही इतना ज्यादा जा रहा है तो उसमें भी कोई फायदा नहीं होता है बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ 2 3 वीक्स द पोजिशंस एंड वोलेटिलिटी विल कम डाउन। तो अगर जो इवेंट हो चुका है उस इवेंट के बाद अगर आप इंश्योरेंस लेते हो तो उसमें भी फायदा नहीं होता, वहां भी लोगों को नुकसान ही होता है। दिस इज माय एक्सपीरियंस। जैसे अगर मेरा समझो या किसी भी क्लाइंट का एक 5 करोड़ का पोर्टफोलियो है, टीवी पे भी बताते हैं कि भाई आप जाके एक पुट ऑप्शन ले लो। अब वो पुट ऑप्शन ही आपको इतना महंगा मिलेगा कि अगर वो इवेंट नहीं हुआ तो आपका उस पुट ऑप्शन में भी बड़ा नुकसान हो जाएगा क्योंकि उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इस कंडीशंस में क्या होता है कि ज्ञान देने के लिए टीवी पे सलाह देने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं, बट अगर आपको पर्सन टू पर्सन सिचुएशंस हैंडल करना रहता है एंड दैट वी कैन डू बाय डिस्कसिंग पर्सनली। तो आप जो टीवी पे देखते हो कि भाई आप अभी जैसे मैं सुबह से देख रहा हूं कि स्टिल पीपल आर गिविंग द कॉल कि आप ये ले लो और ये बेचो और आप ये स्टॉप लॉस लगाइए। इसके लिए मतलब ट्रम्प साहब ने अच्छा न्यूज है, इसके लिए हमारे लिए न्यूज खराब है। मार्केट ओपन गैप अप एंड गैप डाउन हो रहा है, इसमें दोनों साइड के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं।
तो मेरा पहला सलाह रहेगा कि इस सिचुएशंस में डू नॉट ओवर ट्रेड। अगर आप कोई भी ट्रेड कर रहे हो तो ट्रेड में आपके अगर स्टॉप लॉस लगाते ऊपर क्या नीचे का दोनों साइड। आई कैन गिव यू एन एग्जाम्पल। ऑन फ्राइडे पीपल हैव एज्यूम दैट के फार्मा के ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगाया। सो व्हाट हैपन, फार्मा सेक्टर हैज गॉन अप अराउंड 5%, अदर सेक्टर हैज कम डाउन 5 to 6 7%। नेक्स्ट डे थोड़ा सा एक बारीक सा रीडिंग था कि शायद वो फार्मा पे भी टैरिफ लगाएंगे ट्रम्प साहब। तो दूसरे दिन क्या हुआ, 10% डाउन। So what happened? Because the person is behaving like a Hitler type of the behavior. He is having anything in mind. He spoke in the public, and public have the different types of the assumptions. कि इससे तो ये हो जाएगा, उससे तो वो हो जाएगा, और उसकी वजह से इस कंपनी को ये फर्क पड़ेगा। और टीवी पे एनालिसिस बैठे रहते हैं, वो बताते हैं नहीं ये सेक्टर अच्छा है, ये सेक्टर खराब है, और ज्यादा से ज्यादा वो बोलते हैं कि आप इसमें स्टॉप लॉस लगाओ। अब हम स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे? कल के दिन एचडीएफसी बैंक 1840 था, आज 1760 खुला है। आप जब नींद से उठोगे तभी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। सो आई मीन टू से लॉट मेनी पीपल आई हैव लर्न दैट दे आर डूइंग इन द ट्रेडिंग। उनके बच्चे भी ट्रेडिंग कर रहे हैं या कोई पेरेंट्स भी ट्रेडिंग कर रहे हैं। पहले आप इसको ट्रेडिंग करो मत जब तक ये चीजें थोड़ी सी सेटल नहीं होती हैं। द रीजन इज दैट लॉट ऑफ न्यूज फ्लो इज गोइंग ऑन। जब कल मैं ब्लूमबर्ग का न्यूज देख रहा था तो उसमें जो सीनेट में जो उनके जैसे अपने यहाँ पार्लियामेंट रहती है वहां भी ट्रम्प साहब ने अभी क्या किया है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया है। यू सी व्हेन ही शो द स्लेट एंड ही से आई साइन द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। What is mean by executive order? What are the order he is passing or passing into by his own way in a single-handed? These executive order has to be passed in the his senate in 60 days, within 16 days. Now, lot of senator, businessmen, public and आम जनता सब परेशान है। ठीक है। सो दीज पीपल आर नाउ मेकिंग ए ग्रुप ऑफ द कोटरीज के ये हम कुछ कुछ बिल पास नहीं होने देंगे या हम कुछ कुछ बिल हम मॉडिफिकेशंस करवाएंगे। सेकंड चीज, अगर आप लोगों ने देखी है कल बहुत सारा यूएस में, और जो यूएस के लोग अदर कंट्री में रह रहे हैं उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन चालू किया है। डेमोन्स्ट्रेशन चालू करने के बाद दिस पर्सन कैन बी कम इन प्रेशर और मे बी गवर्नमेंट में थ्रू आउट। ये ऐसे मूवमेंट्स होते हैं लाइफ में, क्योंकि अगर सबको देखिए दो टाइप के डिसीजंस होते हैं। जैसे एक रिपब्लिकन है और वो डेमोक्रेटिक है। अगर वो कोई डिसीजन ले रहा है तो डेमोक्रेटिक को समझो नुकसान होता है तो आधी पब्लिक नुकसान में जाती है। अब इस इनकी जो डिसीजंस हो रहे हैं ना उसमें रिपब्लिकन को भी नुकसान हो रहा है और डेमोक्रेटिक को भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि वोटर तो पूरी आम जनता है यूएस में। तो हुआ क्या है कि इसके अंदर में सभी लोगों का पैसा वहां पर रहता है इक्विटी फंड में। जैसे 401 के उनका एक पेंशन फंड होता है जहां पर सभी लोग इक्विटी में, बॉन्ड्स में, गोल्ड में, सिल्वर में रहते हैं। अब सभी लोगों का 401 का जो नेटवर्थ है, कैश फ्लो है, वो काफी कम हो गया। अब उसमें रिपब्लिक उनकी जो पार्टी जिन्होंने उनको वोट दिया है उनको भी नुकसान हो रहा है, जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया उनको भी नुकसान हो रहा है। So one person is making enemy to everybody. Even those who are in its government, they are having the businesses and they are having lot of interest. Even Trump is also a big businessman. तो मेरा जो बोलना है कि इसमें न्यूज फ्लो इतनी ज्यादा हो रही है कि अगर 3 दिन बाद मालूम पड़ता है कि नाउ ही इज रेडी टू नेगोशिएट सर्टेन कंडीशंस, मार्केट अचानक गैप अप खुलेगा। तो अगर आप पैनिक में कोई चीज सडनली भेज देते हो कि नहीं यार आई हैव टू बी गेट रिड आउट ऑफ ऑल दीज थिंग्स एंड आई डोंट वांट एनीथिंग, तब तक ये सेटल नहीं होता है, तब तक कुछ भी ज्यादा एक्टिविटी ना करें तो अच्छी बात है। इसके लिए मैंने बोला है कि ट्रेडिंग करना ज्यादा अच्छा नहीं है। अगर हम देखते हैं कोई भी पोर्टफोलियो या इंडिविजुअल स्टॉक्स, उसमें मूवमेंट 10-15% हो जाता है। ठीक है, अभी जैसे टाटा मोटर का है, उन्होंने भी बोल दिया कि हम यूके में प्रोडक्शन थोड़े दिन के लिए बंद करते हैं। मार्केट में स्टॉक गिर गया 10%, टाटा स्टील 10% डाउन, बट यू सी दैट हाउ मच इंडेक्स इज डाउन 3%। तो डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो ऑलवेज प्रोटेक्ट यू इन सच सिनेरियो। इफ यू आर हैविंग ए direct stock portfolio, you can check it, it may be go down by 10
5% to 6% to 10%. But if you see the mutual fund portfolio, the mutual fund portfolio may be down only by 3% or 2%, because which is having the different types of the scenario and different type of assets. Everything which is doing by the government or by the US government, everything is not going in the loss. So the in mutual funds or in any index fund, there are different sectors of the stock are there. तो जैसे अभी हम देख रहे हैं कि अपने लास्ट में फ्राइडे को बैंकिंग सेक्टर में इवन मार्केट इतना नीचे गया तो भी बैंकिंग सेक्टर के शेयर्स नहीं गिरे, बिकॉज अब जैसे मार्केट जैसे नीचे जाता है तो पीपल आर अगेन गोइंग टुवर्ड द एफडीज एंड गोइंग टू द बैंक। तो बैंक को जो डिपॉजिट पहले नहीं मिलते थे, अभी उनको डिपॉजिट मिलने लगे, उनका भी कासा भी बढ़ गया। अगर आप देखोगे सभी बैंक का कि नहीं बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, तो मैं देख रहा हूँ सभी बैंक का कासा बढ़ गया है। कासा जो होता है कैश अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट का जो उनका रेशियो रहता है, जो उनके पास करंट अकाउंट का पैसा फ्री रहता है। सो व्हाट आई मीन टू से कि उस दिन तक बैंकिंग सेक्टर में मंदी नहीं थी, लेकिन आज इतनी बड़ी लाट आई है इसकी वजह से। जब गिरता है मतलब कोई भी चीज, जैसे अगर आप एक 10 मंजिले की कोई मंजिल है, मतलब कोई अपार्टमेंट है, और अगर उसमें चौथे माले पे कोई क्रैक आता है तो ऊपर का भी मंजिला गिरने वाला है। तो ये जो सिचुएशंस होती है इसमें कोई भी बचता नहीं है। एनी फंडामेंटल थिंग्स यू बाय, एनी फंडामेंटल सेक्टर यू बाय, टुडे आई हैव सीन दैट सम एफएमसीजी फंड्स इज नॉट गोइंग डाउन। यूएस में भी मैंने फ्राइडे को देखा था, तो एफएमसीजी फंड्स थोड़े से ऊपर जाते हैं, बिकॉज पीपल लाइक टू हाइड ऑफ देयर पोर्टफोलियो समवेयर बिकॉज दे डोंट सेल इट। तो इसमें बहुत सारे लोग एज करते हैं। तो आई विल कम टू वन पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट मैंने जो बताया कि इस कंडीशंस में आप कोई चीज सोचोगे कि बहुत चीप मिल रही है, आप खरीदी करोगे, और उसमें आप अगर सोचोगे कि कल के दिन गैप अप खुलेगा, बड़ा पैसा मिलेगा, इट मे बी पॉसिबल, बट इट इज नॉट 100% पॉसिबल कि ये ऐसा ही होगा। बिकॉज न्यूज फ्लो डिफरेंट टाइम में डिफरेंट टाइप की न्यूज आ रही है और डिफरेंट सेक्शन से आ रही है। उसका आप एजम्पशंस कैसे करते हो, एनालिसिस कैसे करते हो, उसके ऊपर उसकी प्राइस डिसाइड हो रही है, ना कि कंपनी में घाटा फायदा क्या हो रहा है कंपनी को, उसके ऊपर नहीं हो रही है। तो एजम्पशंस लोग टीवी पे अलग कर रहे हैं, पेपर पे अलग कर रहे हैं, अपने दोस्त लोग अलग कर रहे हैं, और जिनको कुछ नहीं आता है वो लोग अपना अलग कर रहे हैं। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि अगर मैं म्यूचुअल फंड्स में जो पोर्टफोलियो रहता है उसके अंदर में अपने पास बहुत सारे जो स्टॉक्स में नहीं होता है जो म्यूचुअल फंड में होता है, जैसे बहुत सारे लोगों का मल्टी एसेट्स फंड है। मल्टी एसेट्स फंड जैसे आप देख रहे हो लास्ट 6 मंथ के अंदर में जो करेक्शन आया मार्केट में, तो इक्विटी में करेक्शन आया, डेट फंड में करेक्शन तो कुछ भी नहीं आया, उल्टा डेट फंड में यील्ड कम हुआ है, जो 10 ईयर जीसेक बोलते हैं। और 10 ईयर जीसेक का अगर रेट कम होता है तो बॉन्ड की यील्ड बढ़ती है, सॉरी बॉन्ड की प्राइस बढ़ती है। और बॉन्ड फंड जिनके पास भी हैं, या डेट फंड जो पोर्शंस है आपके जो भी म्यूचुअल फंड्स में है, वो डेट फंड का जो पोर्शंस था उसमें रिटर्न थोड़ा सा 2-3% बढ़ गया है। सेकेंडली, दोज हु आर हैविंग गोल्ड सिल्वर इन देयर पोर्टफोलियो, तो गोल्ड और सिल्वर 40% का रिटर्न दिया है। जिनके पास भी मल्टी एसेट्स फंड है वो फंड तो उल्टा परफॉर्म ज्यादा किए, इक्विटी फंड से भी ज्यादा परफॉर्म किए, क्योंकि उसके अंदर में गोल्ड सिल्वर बॉन्ड है। तो जब हम एक मैंने देखा है लोग मतलब मार्केट को गिरने से रिलेशंस लगाते हैं कि पोर्टफोलियो विथ मिडास वेल्थ, वो भी गिर रहा है। हाँ गिरेगा जरूर, लेकिन इंटेंसिटी उसकी कम होती है, बिकॉज वी हैव द पोर्टफोलियो नॉट एज ए 100% स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो इसलिए हमने बहुत बार बोला है कि जो जो पीएमएस क्लाइंट्स है, जो डायरेक्टली इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, उनका पोर्टफोलियो ज्यादा गिरता है। बट दोज हु आर इन द बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू जो पोर्टफोलियो बनाया गया है, आप किसी भी आदमी का अपने आप खुद का भी पोर्टफोलियो अगर देखोगे तो अभी भी 70% इक्विटी टू 30% डेट या मल्टी एसेट्स उस टाइप में रहता है। So we are not in, first thing, we are not in the 100% equity. Secondly, we are not having any concentrated stock. Like what do you mean by concentrated stock? TCS का भाव 4500 से अभी 3100 हो गया है।
तो हमारे पास जो म्यूचुअल फंड्स या जो आपके पास फंड्स है उसके अंदर में टीसीएस पूरा का पूरा नहीं है, 2-3% है, लेकिन उस फंड के अंदर में हिंदुस्तान लीवर भी है, उसके अंदर में एशियन पेंट भी है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट एवरी न्यूज इज नॉट ए नेगेटिव न्यूज। तो जो भी चल रहा है वर्ल्ड में उसमें कुछ कुछ इंडिया के लिए काफी अच्छा भी हो रहा है। नाउ कम टू द पॉइंट्स ऑफ ऑयल। ऑयल का अभी जैसे जैसे हमने बताया कि कोई भी असेट्स क्लास जब गिरता है स्पेशली सुनामी टाइप से, तो सभी असेट्स क्लास गिरते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द उसको इम्पैक्ट कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। इस चीज को मैं नेक्स्ट पॉइंट में एक्सप्लेन करूंगा, पहले मैं बता रहा हूँ ऑयल के बारे में। अभी ऑयल भी 66 का ब्रांड का रेट हो गया। इंडिया इज द ऑयल मेजर इंपोर्टिंग कंट्री। तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज जाता था वो भी कम जाएगा। सो ऑयल कंजम्पशन में जो कंपनी है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, जैसे एशियन पेंट बोलो, हिंदुस्तान लीवर बोलो, एफएमसीजी कंपनियां बोलो, तो इनको भी फायदा होगा और ओवरऑल अपना बजट डेफिसिट भी कम हो सकता है, फिजिकल डेफिसिट भी कम हो सकता है। तो इसकी वजह से क्या है कि अभी लोगों को लगा कि भाई ऑयल का प्रोडक्शन भी बढ़ा दो, क्योंकि अगर प्राइस गिरेगी तो कल के दिन हमें कम प्राइस मिलेगा। तो व्हाट आई मीन टू से एवरी न्यूज इज नॉट ए बैड न्यूज, लेकिन उसका एनालिसिस करने के लिए 2 वीक 1 वीक लगता है कि जो कंपनी सेटल हो गई है, जो इवेंट सेटल हो गए हैं, वो इवेंट सेटल होने के बाद हमें देखना पड़ता है कि किस कंपनी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन वो इवेंट सेटल ही नहीं होगा इतना जल्दी, क्योंकि वॉट एवर ही इज डूइंग दैट विल टेक द इफेक्ट टू पास द बिल। फिर दूसरी कंट्री कोई रिटेलिएटिंग इफेक्ट लगाती है, फिर कोई दूसरा और रिएक्शन करता है, फिर उसके रिएक्शन के ऊपर और रिएक्शन होता है। तो डेली की डेली न्यूज फ्लो डिफरेंट डिफरेंट हो रही है। इसकी वजह से क्या होता है कि अभी हम लोग अंदाज नहीं लगा सकते कि किस कंपनी को प्रॉफिट होगा किसको नहीं होगा। और किसी ने अगर उसकी बात मान ली तो वो उसके ऊपर तुरंत से टैरिफ कम हो जाएगी। मालूम पड़ा कि हमें, जैसे एक एग्जांपल है, सोना बीएलडब्ल्यू जो कंपनी है वो ईबी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कंपोनेंट बनाती है, विच इज हैविंग मैन्युफैक्चरिंग हब इन मैक्सिको एज वेल एज इन यूएस। तो पहले कनाडा में कुछ टैरिफ लगाया 30-35%, मालूम पड़ा सोना बीएलडब्ल्यू को लॉस हो जाएगा। फिर बोलते हैं कि भाई जो 2 साल पहले हमने जो एग्रीमेंट किया था उस कंपनी को अगर उसके अंडर में आता है तो दीज कंपनी आर नॉट इफेक्टेड। उस दूसरे दिन सोना बीएलडब्ल्यू का शेयर 40% बढ़ गया। फिर तीसरे दिन मतलब नेक्स्ट वीक में आ गया कि भाई हम स्ट्रेट फॉरवर्ड 26% टैरिफ लगाएंगे, फिर से वो शेयर नीचे आ गया। तो न्यूज फ्लो हर कंपनी के ऊपर में अलग अलग आ रही है। मेरा जो सेकंड मैंने बताया था कि हाँ, हाउ द मार्केट बिहेव। तो मार्केट अभी जो बिहेव कर रहा है वो न्यूज बेस्ड ज्यादा कर रहा है। नाउ आई एम टेलिंग यू देयर आर 4 or 5 टाइप्स ऑफ द मार्केट पार्टिसिपेटेड इन द स्टॉक मार्केट। वन इज इन्वेस्टर लाइक यू एंड मी, सेकंड इज हेजर, थर्ड इज आर्बिट्राजर, फोर्थ इज स्पेकुलेटर। ठीक है, और उसके बाद में बहुत सारे न्यूज मेकर्स होते हैं। अब इस केस में क्या होता है कि हेज फंड का काम क्या होता है कि उसका एक मैंडेट होता है कि अगर कोई स्टॉक्स या कोई फंड या कोई भी पोर्टफोलियो 20% या 50%, जो भी उसकी मतलब बैरियर होता है या ट्रिगर बोलते हैं उनको वो लोग, वो ट्रिगर अगर हिट हो जाता है, जैसे मैंने कोई चीज 100 रुपए की ली और मैंने एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाया कि आई विल ट्राई टू मेक इट 100 रुपीज to 150, बट दिस इज माई बेंचमार्क कि अगर ये 80 से नीचे जाएगा देन आई विल कम आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन। ठीक है, तो अभी इसमें क्या होता है कि पोर्टफोलियो अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये इवेंट की वजह से उस पर्टिकुलर हेज फंड का 100 रुपए का 80 रुपए हो गया। फंडामेंटली ही मेक दैट पोर्टफोलियो करेक्ट, बट ड्यू टू दिस न्यूज द 100 इज बिकम 80। So irrespective of the company is good or bad, economy is good or bad, he would sold the portfolio. Once he sold the portfolio, अब उस पोर्टफोलियो के अंदर में जैसे मैंने बताया कि कुछ कंपनी को प्रॉफिट होने वाला है। जैसे एक मान के चलो आईटीसी है, हिंदुस्तान लीवर है, वो तो एक्सपोर्ट करती नहीं है यूएस को, ना कोई टैरिफ लगने वाला है उस पर।
लेकिन जब वो पूरा पोर्टफोलियो बेचेगा तो वो निफ्टी ईटीएफ बेचेगा। अब निफ्टी ईटीएफ के अंदर में हिंदुस्तान लीवर भी है, एशियन पेंट भी है, इंडियन होटल भी है। नाउ व्हाट इज हैपन टू इंडियन होटल? इंडियन होटल का ना कोई एक्सपोर्ट होता है ना कोई इंपोर्ट होता है। वहां पर तो सर्विस सेक्टर है जो कि पूरा इंसुलेटेड है, ये जो भी इवेंट हो रहा है। लेकिन इस इवेंट में अगर कोई आदमी एक पोर्टफोलियो ही सेल करता है, सो ही हैज टू बी सेल द इंडियन होटल एज वेल एज द हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तो एक पार्टिसिपेंट जो है उसको लॉस हो रहा है, ही वुड सोल्ड इट। नाउ व्हेन ही सोल्ड इट, another persons in the market is called स्पेकुलेटर। स्पेकुलेटर ने क्या किया, एक मार्जिन के बेस पे कोई पोजीशन बनाई है कि मैंने 1 लाख रुपए भरे हुए हैं इसके अंदर में, और मुझे एक 200 निफ्टी का कॉल शॉर्ट करना है या पुट शॉर्ट करना है या फिर फ्यूचर लेके बैठा है। ठीक है। अब उसका पोर्टफोलियो माइनस में जाता है। उसने क्या किया हुआ है, मार्जिन लिया हुआ है कोई प्लेज करके किसी बैंक में, स्टॉक परचेज कर, स्टॉक प्लेज किए हुए या म्यूचुअल फंड प्लेज किए हुए। तो जैसे ही उसका ट्रिगर होता है, मार्जिन उसके पास कम पड़ता है, तो मार्जिन कम पड़ने से बैंक के पास जो उसने प्लेज किया हुआ है, वो बैंक उसको विदाउट आस्किंग हिम ही सोल्ड द पोर्टफोलियो। तो इस टाइप का और एक सेल आता है मार्केट के अंदर में। ठीक है। इसके बाद एक्सचेंज आता है। एक्सचेंज भी बोलता है कि अगर जैसे निफ्टी ऑलरेडी 1500 पॉइंट घट गया 2 दिन के अंदर में, तो जिन लोगों ने भी पोजीशंस बनाई हुई रहती है, कोई कोई आदमी उसके अंदर में डिफॉल्ट होने लगता है। तो एक्सचेंज क्या करता है, विदाउट आस्किंग यू दे विल लिक्विडेट योर पोजीशन। उसके अंदर में फोर्थ पर्सन आता है। जैसे एक लाइव एग्जांपल आपको बताता हूं। जब कोविड के टाइम में हु कौन डिफॉल्ट हो गया था, इफ एनीबडी हैज द आइडिया? वन ट्रेडिंग मेंबर एंड वन स्टॉक ब्रोकर हैज गेट फेल्ड, दैट इज द कार्बी। ठीक है। तो अगर इसमें इस सिचुएशंस में कोई स्टॉक ब्रोकर या ट्रेडिंग मेंबर या क्लियरिंग मेंबर फेल होता है, उसकी न्यूज भी आग में, मतलब जंगल में आग लगने जैसा होता है। सो ही इज ऑल्सो एक, अगर किसी को मालूम पड़ा अरे मेरा पोर्टफोलियो किसके पास है, कार्बी के पास है, तो वो भी एकदम से ऐसा करते हैं कि मतलब मार्केट में पूरा खराब माहौल है, पता नहीं मेरा भी पोर्टफोलियो उसके पास है, अनदर पीपल कम टू सेल इट। तो इसके अंदर में पार्टिसिपेंट बहुत अलग अलग होते हैं। कोई कोई बोलता है कि मेरा एक, मतलब जो ट्रेडर होते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, उनका भी स्टॉप लॉस हिट होता है। तो चारों तरफ से स्टॉप लॉस हिट होते हैं। आप देखोगे कि भाई डो जोन्स, मतलब थर्सडे को डो जोन्स वाज 2200 डाउन, फ्राइडे वाज 2200 पॉइंट डाउन, एंड टुडे डो जोन्स फ्यूचर इज डाउन बाय 1000 पॉइंट्स। तो ये किसकी वजह से होता है? ये होता है कास्केडिंग इफेक्ट से। अगर हम इतने लोग आज अपनी मीटिंग में हैं, करीब 40-50 लोग हैं, इफ आई आस्क यू टू एनी ऑफ यू हाउ मेनी पीपल हैव सोल्ड द पोर्टफोलियो, कितने लोगों ने पोर्टफोलियो बेचा है? तो हमें उसके अंदर में मालूम पड़ेगा कि हम तो उल्टा कुछ लोगों ने खरीदा होगा शायद। तो ये फिर घट क्यों रहा है मार्केट? तो मार्केट घटने का जो हमने 4 कारण बताए, हेज फंड्स होते हैं, स्पेकुलेटर्स होते हैं, आर्बिट्राजर होते हैं, बैंक होता है, मार्जिन की वजह से माल फूटना बोलते हैं। अगर मतलब वो प्योर, हम अगर स्टॉक मार्केट के बारे में बात करें, जो 10-15 साल पहले रिंग ट्रेडिंग होती थी, उसको माल फोड़ना बोलते हैं कि मतलब आपका मार्जिन कम हो गया, विदाउट आस्किंग यू उसका उसका शेयर बेच दिया जाता है। तो ये न्यूज की वजह से कास्केडिंग इफेक्ट होता है। Now this cascading effect will percolate it to other asset class also. Now how? जैसे मेरे पास एक पोर्टफोलियो है, 1 करोड़ का इक्विटी पोर्टफोलियो है, और मैंने मार्जिन में कुछ 20 लाख के मार्जिन में मैंने कोई स्टॉक्स में पोजीशन ली है, तेजी की पोजीशन ली है, और अभी मार्केट घट रहा है। मार्केट घट रहा है तो मुझे एक्सचेंज क्या बोलेगा, सर आइदर यू टॉप अप योर मार्जिन, मतलब जो मेरा 20 लाख का मार्जिन था वो मेरा लॉस हो गया। ठीक है। तो एक्सचेंज मुझसे क्या बोलता है कि सर आइदर टॉप अप योर मार्जिन और सेल योर स्टॉक्स। मैं बोलता हूं मेरे पास अभी मार्जिन तो है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, उसमें मेरे पास जो एग्जिस्टिंग स्टॉक्स है वो बेचूंगा। ठीक है। तो उसकी वजह से सेलिंग आती है। अब मैं बोलता हूं कि मेरे पास जो स्टॉक्स है उसका भाव गिर गया है, आई डोंट वांट टू सेल। जैसे मेरे पास समझो टीसीएस है, 4200 का टीसीएस है, अभी 3100 हो गया।
तो मुझे अभी मार्जिन भरना है, तो मैं क्या करूंगा? 3100 का टीसीएस तो बेचूंगा नहीं, बिकॉज टीसीएस इज ए गुड स्टॉक, आई वांट टू होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म। नाउ व्हाट आई विल डू, जो जो वाला असेट्स क्लास ज्यादा बढ़ गया है मैं उस पर टारगेट करूंगा फिर। तो आपने देखा रहेगा कल के दिन फ्राइडे को, वाई द गोल्ड हैज कम डाउन, बिकॉज गोल्ड ऑलरेडी एप्रिसिएटेड 40% ओनली दिस ईयर। सिल्वर वाज अप फ्रॉम 60,000 टू 1 लाख रुपीज। सिल्वर 2 दिन में 15% गिरी। क्यों? मैंने आपको एकदम रिलेशन क्लियर बताया कि व्हेन somebody getting lost, so they fly away to the assets class which is giving him very good return or no loss, या उसको जहां जहां प्रॉफिट का चांस मिलता है वो पहले वो वाला असेट्स खाली करता है। सो दैट्स व्हाई व्हाट हैपन ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे, सिल्वर हैज गॉन डाउन 7% एंड 8% रिस्पेक्टिवली। जो सिल्वर 3 महीने में 15% बढ़ी थी, वो 2 दिन में 15% घट गया। गोल्ड $150 पर आउंस रिड्यूस इन 1 डे। 3165 का रेट था यूएस में, फ्राइडे को क्लोजिंग के टाइम 3025 हो गया। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आप अभी कोई बोलता है कि भाई सेफ हेवन के लिए हम गोल्ड ले लेते हैं, गोल्ड नहीं गिर रहा है, गोल्ड बहुत मजबूत है। कोई बोलता है मैं सिल्वर ले लेता हूँ, सिल्वर जब कोई ऐसी क्राइसिस आती है तो सिल्वर ले लेता हूँ। इस टाइप की सुनामी टाइप के मार्केट में कोई भी एसेट क्लास क्यों नहीं बचता है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। बिकॉज आप देखिए जेपी एसोसिएट जब कंपनी लॉस में गई है तो उसका जब असेट्स बेचा जाता है तो सबसे पहले कौन सा असेट्स बिकता है? जो लिक्विडेबल है, जिसमें प्रॉफिट होता है। सो व्हाट हैपन, जिस जिस असेट्स क्लास में लोगों को अच्छा प्रॉफिट है, तो पहले वो गिर नहीं रहा था, अभी वो गिरेगा। क्योंकि पीपल व्हाट दे थिंक कि भाई 10 रुपया अगर लॉस हो गए हैं, तो जहां पर 30-40 रुपए का प्रॉफिट है, लेस कैश दिट ऑल्सो, क्योंकि कल के दिन वो भी गिर जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि पोर्टफोलियो का रिव्यू होना जरूरी रहता है। और जो पोर्टफोलियो में ऑलरेडी जैसे मल्टी एसेट क्लासेस हैं, बैलेंस एडवांटेज, तो तीसरा पॉइंट मेरा था कि अपने पास जो पोर्टफोलियोज हैं उसके अंदर में जैसे बैलेंस एडवांटेज फंड्स है, तो बैलेंस एडवांटेज फंड्स में डोंट कंपेयर इट विद द स्टॉक मार्केट। अपने पास अभी भी जितने भी इंडिया में, स्पेशली नॉट अपने पास भी बोलूंगा, इंडिया में जितने भी बैलेंस एडवांटेज फंड है, वी आर टेकिंग द रिव्यू ऑफ ऑल ऑफ देम। बैलेंस एडवांटेज फंड में करीब 50 to 60% ही इक्विटी है। तो मार्केट जब घट रहा है तो आप देखेंगे कल के दिन बैलेंस एडवांटेज का एनएवी देखना, शायद 1.5% 2% ही घटेगा। मल्टी असेट्स का एनएवी देखना, शायद उसका एनएवी जैसे निफ्टी 3% घटा है, या 2-3 दिन के अंदर में 5% घट गया, तो बैलेंस एडवांटेज 2% घटा होगा, मल्टी असेट फंड शायद 1% घटा होगा। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में जो पैसा है लोगों का, उनको लगता है कि मार्केट गिर रहा है तो मेरा पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो गिर जाएगा। ऐसा होता नहीं है। एंड वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये हमारे पास लास्ट 5 बियर मार्केट का एक्सपीरियंस है कि यहाँ पर लोग बोलते हैं कि एसआईपी बंद कर देते हैं। दिस इज द टाइम टू एटलीस्ट नॉट इंक्रीज योर एसआईपी बट कीप सेलिंग थ्रू द रफ टाइम। यही आपको सबसे बड़ा पैसा बना के देता है। नॉर्मलाइजेशन होने में 2-3 महीना लगता है। कोई भी घाव अगर बढ़ता है, आप मलहम पट्टी करते हो, तो उसको 2-3 महीने के बाद इट बिकम नॉर्मल। और सभी जगह सबको बिजनेस करना है, सभी को अपना अपना फैक्ट्री और इंडस्ट्री संभालना है। वही आदमी पार्लियामेंट में जाता है, वही आदमी सीनेट में जाता है। तो कोई भी आदमी ऐसा नहीं हो सकता है कि जो अकेले चलेगा पूरी दुनिया को नुकसान हो जाएगा। बट इट विल टेक टाइम। बट स्टॉक मार्केट का मेरा अनुभव है, स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज है जहां पर आपको एक सिर्फ बटन प्रेस करना होता है। बटन प्रेस किया एंड यू कैन सोल्ड ऑल योर पोर्टफोलियो, यू कैन टेक डिसीजन टू मेक शॉर्ट, यू कैन टेक ए डिसीजन टू गो लॉन्ग। तो स्टॉक मार्केट क्या करता है, स्टॉक मार्केट को 2 महीने या 3 महीने का सब्र नहीं रहता है। सो स्टॉक मार्केट रिएक्ट वेरी वेरी फास्ट, 3 मंथ 2 मंथ बिफोर ऑफ एनी इवेंट। और हम क्या करते हैं, हम अगर न्यूज को देखेंगे, एनालिसिस की बात सुनेंगे,
तो और भी ज्यादा पैनिक हो जाएंगे। इसके लिए हमें समझना है कि शांति से अपना पोर्टफोलियो किस टाइप का है, हमारी जरूरत कैसी है। इस चीज में मैं आपको बोलूंगा, अगर एक ही आदमी पैनिक में हो सकता है, वो आदमी है जिसको अगर 2-3 महीने के अंदर पैसा चाहिए था, उसका पोर्टफोलियो 1 करोड़ का था, अभी उसका पोर्टफोलियो सपोज 90 लाख हो जाता है और उसको कंपलसरी रिडम्पशन करना पड़ता है, तो उसको एक दुख होता है कि मैं 1 महीने पहले 1 लाख 1 करोड़ मिलने वाला था, वो अभी मुझे सिर्फ 90 लाख रुपए मिल रहे हैं। अदरवाइज इफ यू गो आउट एनीवेयर, इफ यू डिस्कस विद द पीपल, जो लोगों को शेयर मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, उनको अगर आप पूछोगे भी कि निफ्टी आज इतना गिर गया मार्केट, वो बोलेगा मुझे कुछ मालूम ही नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर भी एक पोल लिया कि हाउ मेनी पीपल सोल्ड एंड हाउ मेनी पीपल आर बाइंग, नोबडी इज डूइंग एनीथिंग। मार्केट में क्या होता है कि जो 5% लोग होते हैं, दीज पीपल आर चेंजिंग द सिनेरियो ऑफ द मार्केट। नाउ आई कैन गिव यू दिस एग्जांपल ऑल्सो कि एक सोसाइटी है जिसमें 600 फ्लैट्स हैं, 600 फ्लैट्स हैं, स्टेबिलिटी है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन उस सोसाइटी के अंदर में अगर 5 फ्लैट, जैसे समझो उस सोसाइटी के अंदर में 2 करोड़ का एक फ्लैट है, उसके अंदर में अगर 4-5 ऐसे ट्रांजेक्शन्स हो जाते हैं जिन्होंने 2 करोड़ की जगह 1 करोड़ 60 लाख में बेचा खरीदी किया है, व्हाट विल हैपन, एंटायर 600 करोड़ के जो कॉलोनी है उसका प्राइस भी 1 करोड़ 60 लाख हो जाता है। एंड दोज हु आर नॉट सेलिंग दैट फ्लैट और प्रॉपर्टी, दे ऑल्सो गेट पैनिक, क्या रे मेरा तो भाव नीचे आ गया, मतलब मेरी जो नेटवर्थ है विच इज कॉल्ड नेटवर्थ, मेरी तो नेटवर्थ 2 करोड़ से 160 हो गई, ना उसने बेचा है ना उसने 160 लाख का खरीदी किया। अभी इसके लिए दो टाइप के लोग हैं, अगर 160 हो जाता है उस कॉलोनी का प्राइस और उस कॉलोनी में उस फ्लैट का प्राइस, तो आर यू गोइंग टू बाई इट? नो। आर यू गोइंग टू सेल इट बिकॉज अदर पीपल सेल इट? नो। तो इसके अंदर में जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड, उसके अंदर में 4-5 लोग ही ये सब सट्टेबाजी करते हैं। वन इज हेजर, जो स्पेकुलेटर है, और जो किसी किसी ना का कोई वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। इसके अंदर में बहुत सारे लोग ऐसा भी पैसा बनाते हैं कि अपन एक न्यूज फैला देते हैं, लोग शॉर्ट करेंगे, दूसरे दिन हम गैप अप खोलते हैं, लोगों को फंसाएंगे, फिर से बाहर करेंगे। आपने देखा रहेगा क्रिप्टो करेंसी में एक दिन में मूवमेंट 5-5 10-10% होता है। हाउ मेनी पीपल हैव मेक मनी इन क्रिप्टो करेंसी? मे बी 1 और 2%। वो भी कौन बनाएगा? जिसको ये न्यूज मालूम है कि आज क्या होने वाला है, मतलब जो बिग बॉस है या गॉडफादर है वो क्या करने वाला है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि मार्केट के अंदर में जब मार्केट बढ़ रहा था तब भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ नेटवर्थ हमारा ऊपर दिखता है। उस टाइम किसी ने सोल्ड किया नहीं किया, खाली हम जब एक न्यूमेरिकल वैल्यू देखते हैं कि भाई मेरे पास 2 करोड़ से 2 करोड़ के 2.5 करोड़ दिख रहा है, बट इज एनीबडी सोल्ड? वही उतना ही सोल्ड करते जितना उसको पैसे की जरूरत होती है, अदरवाइज वो सोल्ड भी नहीं करता है। अब 2 करोड़ का 1.5 करोड़ हो गया सपोज, तो भी वो बाई करेगा क्या? नहीं करेगा। तो इस मार्केट में जब इस टाइप का स्पेशली जब मार्केट्स होता है, इसके अंदर में स्पेकुलेटर, हेजर, आर्बिट्राजर, बैंक मार्जिन, ये सब लोग एक्टिवेट हो जाते हैं, दैट्स व्हाई मार्केट इज मूविंग टू मच अप एंड डाउन। उसके बाद में ये जो एनालिसिस बैठे रहते हैं टीवी पे, ये अपना बताते हैं कि भाई ये न्यूज आ गई, इसकी वजह से इस फैक्ट्री को प्रॉफिट होगा, ये न्यूज आई इस इंडस्ट्रीज को लॉस होगा, आप एक काम करिए इसका स्टॉप लॉस लगा दीजिए। इसके स्टॉप लॉस में क्या, आप स्टॉप लॉस का आएगा, 600 पॉइंट निफ्टी डाउन खुला है, आपका स्टॉप लॉस किधर गया? अभी कल के दिन कोई आप ऊपर खुलेगा तो स्टॉप लॉस ऊपर का भी चला जाएगा। दोनों बाजू में मतलब हमको गंजे होना है इसमें। अगर मैं बहुत क्लियर बात बोलूंगा तो इस टाइप में कोई भी पैसा कमाता नहीं। अब करना क्या है? करना ये है कि थोड़ा सा, मतलब हम लोग भी जैसे जैसे मैं आपकी मीटिंग ले रहा हूँ, हमारे पास भी जितने भी एएमसीज हैं, मतलब असेट मैनेजमेंट कंपनी है, फंड मैनेजर्स हैं, दे आर डूइंग लॉट ऑफ कॉल टू अस। तो एक चीज क्लियर बताई गई है कि जो कोविड के टाइम में जो मार्केट गिरा था 30-40%, और वो कारण अलग था, अभी भी इंडियन मार्केट में इतना करेक्शन नहीं आया। हम पहले ओवर वैल्यू थे, जो हमारा पी करीब करीब 22-24 चला गया था, अभी हम एक फेयर वैल्यू पे आए। तो आप कोई चीज सस्ती मिल रही है तो आप गिर के मत पड़ो उसके ऊपर।
कि मतलब सस्ती मिल रही तो चलो कुछ पैसा पड़ा है तो ले लेते हैं। तो वो सिचुएशंस अभी नहीं है। दैट्स द मैसेज पीपल आर गिविंग, कि अगर ये ज्यादा बढ़ता है तो थोड़ा टेम्परेरी 5-6 महीने रिसेशन टाइप का सिचुएशंस अगर बनता है, जैसे हमने बताया कि एग्जीक्यूटिव पावर है, बिल पास होते हैं नहीं होते हैं, ये ट्रम्प साहब भी रहते हैं कि नहीं 2 महीने के बाद, वो भी गारंटी नहीं है। फ्रेंकली स्पीकिंग, हमारा एक्सपीरियंस बोलता है जब पब्लिक अगेंस्ट में जाती है तो नोबडी इज ए बॉस। तो ये चीजों की सिचुएशन संभलेगी। हाँ, ये जरूर है कि पहले जैसा स्मूथ कंडीशंस मार्केट में नहीं रहेगा, लेकिन मार्केट चीप नहीं है, तो आप कोई भी चीज में एकदम से गिर के खरीदी मत करो। और अगर कुछ लगता है कि भाई हमें एक्सपोजर कम लेना है, इंडिविजुअल पोर्टफोलियो डिस्कस करो अपने आरएम के साथ, हमारे साथ। वी कैन डिस्कस कि भाई अगर कोई नियर टाइम में जरूरत है तो कौन सा एसेट क्लास कम करना है, कौन सा ज्यादा करना है, वो भी सलाह से करो। लेकिन कोई भी चीज हास्ट में डिसीजन मत लेना, ना खरीदने में ना बेचने में। खरीदने के जैसा भी बहुत सारा चीज नहीं है मार्केट, शायद अपन को और भी नीचे मिल सकता है। जैसे हमने बीच में 3 महीने पहले 2 महीने पहले मीटिंग ली थी हांगकांग का। हांगकांग का मार्केट 50% बढ़ा था, अभी आज हांगकांग का मार्केट 12% नीचे। मौका मिल गया, ठीक है। तो जैसे बुल फेस में था वो मार्केट, स्ट्रॉन्ग बुल फेस में था, अभी करीब करीब 20% गिर गया। लेकिन पहले 10 को सेटल होने दो, उसके बाद फिर से थिंकिंग करेंगे। और इन बिटवीन पर्सनल कोई डिस्कशन है या पर्सनल कोई पोर्टफोलियो का रिव्यू है, वो जरूर करो। पर्सनल कोई इमीडिएट नीड है पैसे की, उसके लिए जरूर डिस्कस करो। एक चीज और मैंने बताई है, बीच में मैंने मेल भी भेजे थे, कि पहले जैसा मार्केट के रिटर्न नहीं आएंगे नेक्स्ट 2 इयर्स में। ऐसा लग रहा है कि मार्केट में जो पहले के 2-3 साल में जो रिटर्न आए हैं कि 25%, 15%, 20%, वो रिटर्न नहीं आएंगे, शायद 9-10% रिटर्न आएंगे। तो अपने लिए दो चीजों की बहुत बड़े बेनिफिट्स हुई इस साल में। एक तो अपना इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ गया है, उसकी वजह से 12 लाख की इनकम टैक्स फ्री है करीब करीब। तो आपके घर में जिनका टैक्स स्लैब कम है, उनके नाम पे आप अभी कुछ फिक्स इनकम का कैश फ्लो क्रिएट कर सकते हो, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो वो उसकी वजह से थोड़ा पोर्टफोलियो को रीअलाइन करना पड़ेगा। और अपने फैमिली में जो लोग भी लोअर टैक्स स्लैब में हैं, उनको जो हाईएस्ट टैक्स स्लैब वाला इंस्ट्रूमेंट लेता है, लाइक डेट फंड या एफडी, वो उनके नाम पे आप करके आपको टैक्स एडजस्टेड रिटर्न काफी अच्छा मिल सकता है। तो दो बहुत बड़े सिनेरियो चेंज हुए। अभी 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद हमारे यहाँ आरबीआई की पॉलिसी का मीटिंग है, उसके अंदर में भी करीब करीब 50 से 75 पैसा रेपो रेट कम हो जाएगा। 25 पैसा ऑलरेडी कम हो गया है, तो वो एक पॉजिटिव ट्रिगर आएगा। हमने ऑलरेडी एक पॉजिटिव ट्रिगर आपको बताया है कि ड्यू टू द करेक्शन इन स्टॉक मार्केट, लॉट ऑफ पीपल दोज हु हैव कम फ्रॉम, जो फिक्स इनकम से यहाँ पर आए थे, वो लोग अभी फिर से उस तरफ जाना चालू कर दिए। एंड दैट्स वाई बैंक का जो डिपॉजिट मिल नहीं रहा था, कि भाई सब लोग म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं, बैंक में पैसा कम आ रहा है, अभी फिर से वो फ्लो अपोजिट हो रहा है। तो बैंक को फिर से प्रॉफिट होगा। बैंक का अभी आप देखोगे 15 दिन के अंदर में डिपॉजिट रेट भी कम हो जाएगी। लेकिन क्या हुआ है कि इनकम टैक्स की वजह से लॉट ऑफ पीपल, देयर वाइफ दोज हु आर नॉट वर्किंग, देयर सन डॉटर दोज हु आर मेजर, उनके नाम पे अगर हमने एफडी डिवेंचर ये सब इन्वेस्टमेंट किए, तो 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है। तो अगर किसी को 10% विदाउट एनी रिस्क, रिस्क तो थोड़ी सी रहती है बॉन्ड में भी, लेकिन कंपेयर टू वॉलेटिलिटी नहीं होती है। तो विदाउट वॉलेटिलिटी, विदाउट रिस्क, इफ ए पर्सन कैन अर्न 9% to 10%, तो उसके अंदर में पीपल आर डाइवर्टिंग देयर फंड्स एंड वी आर ऑल्सो सजेस्टिंग दैट टू मेक द स्टेबिलिटी इन योर पोर्टफोलियो। तो ये मेरा मैसेज रहेगा कि अभी जो सिचुएशंस चेंज हुई है टैक्सेशंस की वजह से और मार्केट की वजह से, पोर्टफोलियो को हमें फिर से रीअलाइन करना है। दो जुआर इन द लोअर टैक्स स्लैब, क्योंकि अभी क्या हुआ है, इंडेक्सेशन निकल गया डेट फंड में से। 2 साल के अंदर का अगर हम डेट फंड लेते हैं तो पूरा इनकम में चला जाता है, 2 साल के बाद का डेट फंड 12.5% पे चला जाता है। एफडी में भी सेम है, अगर 12 लाख के नीचे है तो इंटरेस्ट टैक्स फ्री है, 12 लाख के अगर हम हमारे पास में लेते हैं तो 37% पे आते हैं। तो ये चीज अभी जो हम बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानर,
फाइनेंशियल प्लानिंग का भी बहुत जरूरी है कि आप अपने असेट्स क्लास किसके नाम पे किस टाइप के असेट्स रखने हैं, जिससे कि टैक्स एफिशिएंट रहे ओवरऑल पोर्टफोलियो घर का। तो ये चीज आपको कोई भी टीवी पे जनरली, मतलब जो कभी कभी इंटरव्यूज वगैरह आते हैं टीवी चैनल पे, जो फाइनेंशियल प्लानर वगैरह आ रहे हैं वही लोग बताएंगे। लेकिन टीवी पे जनरली स्टॉक्स के बारे में ही बात होती है कि ये ले लो, ये बेच दो, इसका ये खराब होगा, इसका ये अच्छा होगा, ये स्टॉप लॉस है, इसका अपर ट्रिगर है। बट फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बात कम होती है, टैक्सेशंस के बारे में बात कम होती है। सो हाउ टू मैक्सिमाइज एंड ऑप्टिमाइज योर पोर्टफोलियो, दीज आर द टू थ्री थिंग्स वेरी गुड हैपन टू इंडिया। और मैंने एक लास्ट में एक आपको शेयर करता हूँ कि मतलब नरेशन चेंज होते रहता है, बट द नैरेटिव है चेंज। कि जब भी मार्केट में बजट आया था अपने यहाँ, तो लगा कि भाई बहुत सारे कंजम्पशंस के स्टॉक्स ऊपर जाएंगे और बहुत सारा खरीदी लोग करेंगे। सो उस दिन एशियन पेंट बढ़ गया, उस दिन मतलब हिंदुस्तान लीवर का शेयर का भाव बढ़ गया, कुछ हीरो मोटर का भाव बढ़ गया। लेकिन मैंने कल एक 2 दिन पहले प्रशांत जैन जो एचडीएफसी के एक टाइम में सीआईओ थे, तो उन्होंने बोला कि अगर लोगों के पोर्टफोलियो में इतना डेंट आता है, मतलब आज मिड कैप स्मॉल कैप 25-30% घट गया और इंडेक्स करीब करीब 15% घट गया, तो गवर्नमेंट ने जो फैसिलिटी दी है, पर पर्सन कितना फायदा हुआ है, पर पर्सन करीब करीब 70,000 से लेके 1.5 लाख तक का प्रॉफिट हुआ है टैक्सेशन में, जो नया टैक्स आया है। लेकिन लोगों का पोर्टफोलियो अगर 2 लाख से 10 लाख 20 लाख से कम हो जाता है, विच विल डेंट द कंजम्पशंस। कंजम्पशन सिर्फ टैक्स की वजह से नहीं बढ़ता है, लेकिन अगर पोर्टफोलियो मेरा कम हो गया है और मैं अगर कोई बड़ी गाड़ी खरीदने वाला था, डिस्क्रिशनरी खरीदी करने वाला था, शायद उसकी वजह से भी मेरा डिसीजन चेंज हो सकता है। सो एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड टू रिव्यू एवरी 3 मंथ और 6 मंथ। नैरेटिव चेंज होने में टाइम नहीं लगता है। तो बजट की वजह से जो लोग बोल रहे थे कि बहुत सारा प्रॉफिट हो जाएगा बहुत सारी कंपनी को, उनके शेयर फिर से नीचे आए। सिमिलरली जब भी ट्रम्प आए थे, तो ट्रम्प ने जब भी आए थे तो बोले थे कि हम कॉर्पोरेट टैक्स कम करेंगे। और मार्केट में, स्टॉक मार्केट ट्रम्प का जब लगा कि ये जीतने वाला है, तो 20% यूएस मार्केट बढ़ा था। जब जो जैसे ही गवर्नमेंट में आए मार्केट में, मैंने पहले ही बताया, मार्केट इज ऑलवेज डिस्काउंटिंग द फ्यूचर न्यूज। द डे ही विन द इलेक्शन, वो मार्केट का टॉप था। और उसके बाद देन ही स्टार्टेड टू एक्ट ऑन हिज प्रॉमिस। तो जहां से उन्होंने शुरू किया था, आज उससे भी नीचे आ गए। तो सिमिलरली जैसे हमने बताया कि बजट के टाइम में जो नैरेटिव बनाया गया था कि कुछ स्टॉक बढ़ गए हैं, अभी वही स्टॉक उससे भी ज्यादा नीचे आ गए। क्योंकि अगर पैसा ही नहीं है लोगों के पास, तो खरीदी कैसे करेंगे। तो हर एक मूवमेंट में 6 महीने में 3 महीने में, दैट्स वाई वी शुड अलाइन द पोर्टफोलियो एंड चेक द स्टेटस के जो नैरेटिव था अभी उसमें कुछ चेंजेस हो गए हैं क्या। अभी सबसे लेटेस्ट नैरेटिव क्या आ रहा है कि अगर ट्रम्प की वजह से जो चीज 100 रुपए में मिलती थी यूएस में, वो अभी हो गई है 120 की। तो अभी जो परचेजिंग पावर है वहां पे लोगों की, वो परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। परचेजिंग पावर कम हो जाएगी तो रिसेशन आएगा। रिसेशन आएगा और इन्फ्लेशन बढ़ेगा। रिसेशन आने से क्या होगा, खपत कम हो जाएगी, तो इसलिए ऑयल का भाव गिर गया। अब ऑयल का भाव गिरने से किसी को फायदा भी हो गया, जैसे इंडिया है, इंडिया को फायदा हो गया। तो ये नैरेटिव टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। और जो टीवी पे लोग आइडियाज देते हैं कि इसकी वजह से ये आप ले लो, 6 महीने का व्यू रखो, अब व्यू तो 3 महीने में ही बदल गया। तो मैंने एक चीज देखी है, लास्ट के 3-4 महीने में, 3-4 साल में बहुत फास्ट चेंज हो रहा है साइकिल। एंड यू कैन नॉट चर्न योर पोर्टफोलियो सो फ्रिक्वेंटली, एवरी 3 मंथ आप बोलोगे ये अच्छा है अब ये ले लेते हैं, ये अच्छा है वो ले लेते हैं। यू रिमेन टू बी इन द फंड मैनेजर्स थ्रू पीएमएस और मतलब म्यूचुअल फंड के थ्रू। तो वहां जो भी वो खरीदी बिक्री करता है, वहां पर आपको कोई टैक्स का झंझट नहीं है, हेडेक भी नहीं रहता है, और डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो रहता है। सो दीज आर माई मैसेज। तो लास्ट का मैसेज ये है कि अभी कुछ पैनिक होने की जरूरत नहीं है। शायद लॉट ऑफ थिंग्स विल चेंज, लेकिन वो न्यूज कैसा हो रही है, एक एक करके न्यूज आ रही है, छोटी छोटी न्यूज आती है, उसके एजम्पशंस लोग अलग अलग निकाल रहे हैं।
उसकी इंटरप्रिटेशंस लोग अलग अलग निकाल रहे हैं। और जिसका जो काम है, जैसे टीवी का एक एंकर है, उसका काम है कि टीआरपी बढ़ाना। उसको इससे मतलब नहीं है कि आप अगर कभी देखोगे उसमें तो हर एक आदमी आउट ऑफ टेन में से 8 पीपल हमेशा यही बोलेंगे, सर मैं इस स्टॉक में फंस गया हूं। और टीवी एंकर एक ही चीज पूछता है, आपने स्टॉप लॉस लगाया था? तो स्टॉप लॉस कहाँ से लगाएगा? वो तो बेचारा प्रॉफिट के लिए आया था, तुम उसको बोल रहे स्टॉप लॉस लगाया था क्या? तो स्टॉप लॉस लोग लगाते नहीं है, इतना आसान नहीं है स्टॉप लॉस लगाना। क्योंकि कोई भी आदमी इन्वेस्ट करता है तो इन्वेस्ट करता है प्रॉफिट के लिए। जो ट्रेडर होते हैं, हाँ, उनके लिए ये सब चीजें एलिजिबल होती हैं। इन्वेस्टर को इतना सब टाइम नहीं रहता। यू आर बिजी इन योर ओन बिजनेस, so we cannot change our narrative and thinking so frequently. Either it should be handled by the professional persons, or either you should be have the very balanced portfolio। कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। तो ये थोड़ा सा सेटल हो जाएगा मार्केट। मुझे तो लगता है 15 दिन बहुत है। जो भी स्टॉर्म चल रहा है, पीपल आर टेकिंग देयर ओन, मतलब हर एक आदमी रिटेलिएट टैरिफ बढ़ा रहा है, तो उसको भी नुकसान हो रहा है, उसको भी नुकसान हो रहा है। ऐसा कोई काम कभी भी लाइफ टाइम नहीं रहेगा जिसमें दोनों आदमी को नुकसान होगा। जैसे अभी अमेरिका ने चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया 26%, 40%। तो चाइना ने भी 30% लगा दिया। ठीक है, अब चाइना का भी आज 12% मार्केट घट गया, कल भी 12% घट गया था। यूएस का भी घट रहा है। तो अब कौन खुश है इसके अंदर में? नोबडी इज हैप्पी। तो ये चीज ज्यादा दिन तक नहीं टिकती है। दिस इज माई मैसेज। सो फ्लोर इज ओपन फॉर डिस्कशन और एनी क्वेश्चंस। मेरा एक लास्ट में मैसेज फिर से रहेगा कि पैनिक में एसआईपी बंद नहीं करना है। हमने बीच में जो हमारे फिजिकल मीटिंग में आए थे, जो मैंने 22 तारीख को रखा था रेमी ग्रांड में, आई हैव शोन यू वन एग्जाम्पल कि पैसा इसी टाइम में बनता है और इसी टाइम में अपन को मजबूत रहना रहता है। हाँ, लेकिन ज्यादा अभी इस टाइम में बहुत ज्यादा ब्रेव होने की जरूरत नहीं है। दैट इज माई मैसेज। Thank you very much. If you have questions one by one, I am able to answer it. तो सागर अनम्यूट करो। So you can freely ask any question. There is no criteria. Is any or you can put your questions on the chat box. हेलो। Yes, हेलो, हाँ मेरे सर। सर। यस सर। हाँ, बोलिए। सो अभी मतलब मैसेज आपने दिया वो सुना मैंने लास्ट में कि हाँ, एसआईपीज वगैरह वो तो कंटिन्यू करना है अपने को। बट हाँ शैल वी बाय मोर एसआईपीज इन दिस सिनेरियो? आई मीन खरीदारी और करे कि नहीं, वो थोड़ा समझ नहीं रहा है। सर, एसआईपी में क्या होगा? एसआईपी में जैसे मैंने एक मेरा एक 50,000 का एसआईपी चल रहा है, और मैं अगर एसआईपी बढ़ाता हूँ 10-20 हजार रुपए से, और 2 महीने में ही अगर रिकवरी आ जाती है, तो सिर्फ 20 हजार रुपए के ही ऊपर फायदा होगा। ठीक है। तो इस हम्म। टाइम में क्या होता है कि इस टाइम में वन टाइम पैसा डालने में ही फायदा होता है। लेकिन वन टाइम में भी कैसा है कि डस्ट सेटल नहीं हुआ है, तो एसआईपी बढ़ा सकते हो। लेकिन डोंट एक्सपेक्ट कि ये एसआईपी से आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। गेट माय पॉइंट? ओके। मतलब जैसे मैंने 20 हजार डाल दिए, दो हम्म। अपने 10 हजार की एसआईपी करी। हम्म। कितनी एसआईपी जाएगी आज की 2 महीने में? 20 हजार। समझो कल के दिन मार्केट 2 महीने में 20% बढ़ जाता है, जो घट गया, तो प्रॉफिट कितने पे ऊपर होगा? 20 हजार के ऊपर ओके, ही नॉट होगा। मच डिफरेंस, ठीक। करेक्ट। हाँ। पण ते तिकडून हाँ, काढलंच लेकिन पाहिजे. अगर मैंने आपण इसमें झोपेल 5 लाख ना, रुपए डाल दिए, हम्म। उठलं नाही अगर मैंने होणार. इसमें 5 लाख रुपए डाल दिए, तो 5 लाख का 20% बढ़ेगा। ओके। बट मैं अभी भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 5 लाख रुपए डालो। बट हम्म। कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी है। तो हम्म। क्वेश्चन आपके ऊपर ही मैं छोड़ता हूँ कि एसआईपी बढ़ाने से फायदा होगा, 100% होगा। ओके। थैंक यू। यानी क्वेश्चन ऑन हेलो। चैट बॉक्स। सर, हेलो ये सिचुएशन कब तक रहेगी, कुछ अंदाजा है आपको? मैडम, मुझे जितना लग रहा है ये सिचुएशंस जो कभी क्या हो रहा है कि पर्सन इज वर्किंग लाइक हिटलर। ठीक है। तो उसमें उसको भी नुकसान हो रहा है, वो भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन है।
लेकिन थोड़ा सा क्या ईगो ईगो हर्ट हो रहा है अभी, ऐसा दिख रहा है। अच्छा। बट क्या है कि उसके अंदर में मतलब बहुत सारे लोग गालियां दे रहे हैं उसकी गवर्नमेंट में खुद भी। हाँ हाँ। लेकिन अभी क्या है कि अभी अभी गवर्नमेंट बनी है, अगर यही 2-3 साल पुरानी रहती तो अभी तक तो मतलब वो चला भी जाता था, क्योंकि 1 महीना 2 महीने पहले तो गवर्नमेंट बनी, इतनी जल्दी से कोई दुश्मन नहीं बनेगा वहां पर। तो हम्म। मुझे मुझे जो पर्सनली एक्सपीरियंस बोल रहा है कि 2-3 महीने में जो हमने जो बताया ना एग्जीक्यूटिव पावर है, जब ये बिल सब पार्लियामेंट में आएंगे, बहस होगी उसके ऊपर, जैसे अपने बाप बिल आया तो 2 दिन बहस चली, फिर कौन अपोजिट में है कौन फेवर में है। तो हम्म। ये जब ये बिल पास होने पार्लियामेंट में, अभी तक बहस ही नहीं हो रही, वो खाली स्लेट लेके आता है और बोलता है आई हैव साइंड इट, एंड हाँ। मार्केट में पूरा रिएक्शन चालू हो जाता है। अच्छा। तो उसमें कैसा है कि जब ये सब बिल पास होने के लिए जाएंगे, हम्म। डिस्कशन होगा, तो उसके बाद मुझे लगता है कि वो 2 महीने का टाइम है, आई हैव रीड दैट दे हैव टू बी पास ऑल दीज बिल्स इन सीनेट इन विद इन 60 days। तो मुझे तो मेरे मेरा जो दिमाग बोल रहा है या मेरा परसेप्शन से एक्सपीरियंस, 3 महीना 3 महीने में काफी कुछ सेटल हो जाएगा, और वॉलेटिलिटी जो है वो तो 15-20 दिन में हो जाएगी। एक क्वेश्चन आया सुनील मोगे सर का, कैन बी कंसीडर ईटीएफ इन दिस वोलेटाइल मार्केट। सर ईटीएफ एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, जब आपको गैप डाउन जब मार्केट होता है और आपको उसी मार्केट को कैप्चर करना है, तो आप ईटीएफ में उस मूवमेंट को कैप्चर करके परचेज कर लेते। आई कैन एक्सप्लेन यू योर पॉइंट्स। जैसे निफ्टी आज खुला 600-800 पॉइंट नीचे था, माइनस में कुछ 1100 1150 पॉइंट नीचे आया, 1100 पॉइंट। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड खरीदी करोगे तो आज का क्लोजिंग प्राइस मिलता है, बराबर है, विच इज जेवढं तू इथे अराउंड 750 पॉइंट तेवढं डाउन। तुला खेळायला कमी भेटेल एवढं नसतं. अगर आपको 10 तास इथंच लावलेस तर तिथं तुला 1 मिनिट फक्त मैडम खेळायला प्लीज म्यूट अनम्यूट म्यूट करा, आपल्या पप्पाची बाग कोई नाहीये तो बीच में प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। हाँ, तो मेरा बोलना है कि ईटीएफ जो है ना बहुत वॉलेटाइल मार्केट के लिए अच्छी इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन आप उस टाइम में घबराना नहीं है। अब जैसे 600 पॉइंट एसजीएस निफ्टी डाउन था, खुला 800 पॉइंट डाउन है, मार्केट आते आते में 1100 पॉइंट डाउन हो गया। अगर आपको 1100 पॉइंट डाउन ऐसा लगता है कि आप खरीदी कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो, तो ईटीएफ में आपको वो प्राइस मिल गई। लेकिन अभी वो 1100 के बाद 600 पॉइंट तक आ गया, रिकवर हो गया मार्केट, आपको म्यूचुअल फंड में क्लोजिंग प्राइस मिलती है, और ईटीएफ में आपको जो प्राइस में परचेज किया वो प्राइस में आपको इंडेक्स का यूनिट मिलता है। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस विद इन इंट्राडे। लेकिन मैंने ये देखा है कि आप तब स्क्रीन के सामने रहते हो, और अगर जब आपने समझो 800 पॉइंट निफ्टी माइनस था, आपने खरीदी किया और बाद में वो 1100 पॉइंट माइनस हो गया, और आप अगर घबरा जाते हो तो आप वहीं के वहीं बेच भी देते हो। यू मे बी हैव एक्सपीरियंस दैट। सो ईटीएफ इज गुड फॉर कैप्चरिंग द स्पॉट प्राइस विच इज इक्वलेंट टू द म्यूचुअल फंड प्राइस। तो वो अच्छी चीज है इन्वेस्टमेंट करना, बट उसमें डिसिप्लिन बहुत चाहिए कि मुझे तो 800 पॉइंट निफ्टी आने के बाद खरीदी करना है, अभी मुझे इसमें ट्रेड नहीं करना है। अगर आप ट्रेड करोगे और स्क्रीन के सामने बैठे रहोगे और आपको मालूम पड़ा कि 300 रुपए तो अभी अभी नुकसान हो गया। यू गेट माई पॉइंट, आर यू लिसनिंग टू मी? सुनील मोगे सर, नहीं मोगे नाम लिखा हुआ। तो उसमें क्या होता है कि जब आप ट्रेड करते हो तो उसमें से या तो आप ऑर्डर डाल के परचेज करके हट जाओ स्क्रीन के सामने से, तो फिर ठीक है। अदरवाइज क्या होता है कि हमने देखा 800 पॉइंट डाउन खुला, ले लिया, अब वो 1100 चला गया, घबरा गए, कल और नीचे खुलेगा, और फिर हमने उसी में टीवी में न्यूज देख ली कि डो जोन्स अभी 1100 पॉइंट डाउन है फ्यूचर में, पता नहीं है कल 500 पॉइंट और नीचे जाएगा, तो 800 माइनस में खरीदा और 1100 माइनस में बेच दिया। तो ये थोड़ा डिसिप्लिन है, बट विट इज द गुड इंस्ट्रूमेंट ईटीएफ इफ यू वांट टू कैप्चर द स्पॉट प्राइस। एनी अपॉर्चुनिटी ड्यूरिंग टैरिफ। तो सर ये ट्रेडिंग वाला क्वेश्चन है सुनील देश पांडे सर का, एनी अपॉर्चुनिटी ड्यूरिंग टैरिफ मतलब
आपने कोई भी चीज अगर लॉन्ग टर्म के लिए खरीदी करनी है तो थोड़ा पैनिक में आप वो चीजें ले सकते हो। जैसे हमने बताया कि आज जैसे मार्केट गिरा, अब आज मार्केट गिरा तो उसमें होटल के स्टॉक भी गिर गए, जबकि अपने यहाँ होटल के स्टॉक्स में ना हम इंपोर्ट करने वाले टैरिफ, मतलब ट्रम्प साहब को, ना हम उनको एक्सपोर्ट करने वाले हैं, ना कोई उन्होंने टैरिफ होटल पे लगाई कि भाई आप अभी डोमेस्टिक में कुंभ में इतना बड़ा इवेंट हो गया, अभी हमारे यहाँ गर्मी की छुट्टियां चालू हो जाएंगी, पीपल आर मेकिंग मनी, इन टैक्सेशन भी कम हुआ है, मतलब पैसा भी हाथ में ज्यादा आया है, तो देखेंगे तो अगर जब स्मूथ चल रहा था मार्केट, उस टाइम में होटल के स्टॉक्स और सर्विस सेक्टर के स्टॉक्स अचानक बढ़ गए थे। ये जो हमने और एक चीज बताई थी कि अगर 10 मंजिला की मंजिल की अपार्टमेंट है और दूसरे मंजिले पे थोड़ा क्रैक आया तो ऊपर का भी गिरता है। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स या सेक्टर्स होते हैं जिसमें वो लाट की वजह से वो भी शेयर नीचे आ जाता है। तो उस टाइप के स्टॉक्स में आप टैरिफ की वजह से जो मार्केट में करेक्शंस आया है उस टाइप के स्टॉक्स आप ले सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान में रखो, मैंने जो बताया कि जो स्टॉक्स गिरा नहीं है और एक स्टॉक बहुत ज्यादा गिर गया है, उसका लॉस भरने के लिए जो स्टॉक गिरे नहीं है वो भी गिरना चालू हो जाते हैं, आप कभी भी देख लेना। तो वो चीज के लिए आपको फिर थोड़ा सा साइलेंट रहना पड़ता है कि हमने जो चीज ली है वो लॉन्ग टर्म के लिए है। अगर वो गिर जाती है और भी तो आपको वो एवरेज करो, लेकिन पैनिक मत हो। तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो अभी तक गिरे ही नहीं है, तो वो भी गिरना चालू कर देंगे, क्योंकि मुझे तो अभी पैसा चाहिए था, तो जो चीज में प्रॉफिट है उसी चीज को मैं रखूंगा, उसी चीज को मैं बेचूंगा। सॉरी, तो आपने देखा गोल्ड इतना अच्छा मजबूत था, लेकिन गोल्ड भी फ्राइडे को गिर गया, चांदी भी 2 दिन में 15% गिर गई। तो इसीलिए मैंने एक जो सबसे पहले स्टार्ट किया कि इस मार्केट में थोड़ा सा ब्रेव नहीं रहना है, थोड़ा सेटल होने दो 5-6 दिन, एटलीस्ट दो दो वीक का टाइम दीजिए, इतना कोई भाग के नहीं जा रहा है। आई वांट, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ बोलिए। एक्चुअली एक्चुअली अगर इस कंडीशन में अपना स्टॉक मार्केट तो गिरा है, बट वी डोंट हैव एनी मोर मनी टू इन्वेस्ट, तो शुड वी चर्न आवर पोर्टफोलियो? शुड बी चल, चर्न आवर पोर्टफोलियो मतलब शुड वी मेक एनी चेंजेस इन द पोर्टफोलियो ना कि वो तो यहाँ से? करनी है ना, वो करना है। तो हमने जो आपको मीटिंग में बताया थोड़ा सा, मतलब टेक्नोलॉजी फाइनेंशियल है, तो अपने पोर्टफोलियो में डेट फंड रहता है। एक बात आपके पोर्टफोलियो में देखिए, म्युच्युअल फंड तीन टाइप से चेंज होते हैं। आजच्या पेपरवर वाचलं, पुरुषांपेक्षा जास्त बायका आहेत, ते घरी बसून करतात. हा, ते नेट आणि तसं आले सगळं ना घरी ना. हाँ, तो देखिए आपके पोर्टफोलियो में 3 टाइप से चर्न होता है। वन इज ऑन द फंड मैनेजर साइड। आप देखेंगे कि कोई फैक्ट शीट अगर आप खोल के देखोगे तो उसके अंदर में जो सेक्टर वाइज चेंज हो रहे हैं सिनेरियो, मतलब कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बोलो, कंपनी का लॉस प्रॉफिट है, कंपनी का सिनेरियो है, कंपटीशन है, तो फंड मैनेजर लेवल पे वो स्टॉक चेंज करता है। वहां पर आपको बिना जाने पहचाने आपके पोर्टफोलियो में चेंज होता है। सेकंड चेंज होता है असेट, जो अभी आपने क्वेश्चन किया, जैसे आपका बैलेंस एडवांटेज फंड ऑलरेडी है, ठीक है, उसके अंदर में अभी 60% इक्विटी ही था। अब जैसे ये मार्केट 10% घट गया, तो फंड मैनेजर इटसेल्फ विल इंक्रीज योर पोर्टफोलियो, इक्विटी पोर्टफोलियो फ्रॉम 60% to 80%। ही इज हैविंग द लीवेज टू इंक्रीज विदाउट आस्किंग यू, बट ही विल टेक द प्रॉपर डिसीजन आफ्टर एनालाइजिंग द मार्केट। तो यही हमने बताया आपको कि आपके साथ ऑलरेडी प्रोफेशनल लोग पीछे लगे हुए हैं। आप अगर जल्दी में घाई घाई में डिसीजन ले लोगे कि मेरे पास डेट फंड पड़ा है वो बेच के इक्विटी ले लो, तो हमारा एक पराग पारिक मीटिंग, पराग पारिक के जो फंड मैनेजर ठक्कर सर, उनके साथ मीटिंग हुआ था। तो पराग पारिक के पास जो फंड है फ्लैक्सी कैप फंड, उसमें अभी भी 20% का कैश है। एंड ही वाज सेइंग कि अभी तक वो खरीदी कर नहीं रहे, ही इज नॉट हैविंग द कन्विक्शन। ये पूरा गवर्नमेंट का जो उन्होंने पहले ही बोला था कि ये ऊपर नीचे होने दो, एंड मार्केट अभी चीप नहीं है। तो उस टाइप में आपको बेचने के अलावा फंड मैनेजर वो इटसेल्फ कैन इंक्रीज द इक्विटी पोर्टफोलियो। तो आप पर्सनल लेवल पे भी कर सकते हो, जो आपके पास फंड है उसके अंदर में भी चेंज होगा,
बाय डिफॉल्ट होगा, मतलब आपके बिना बताए होगा। और तीसरा, उसमें स्टॉक भी चेंज हो जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, आपको आपकी जानकारी के लिए मैं एक फैक्ट शीट भेजूंगा, 1 साल पुरानी और आज के दिन की। आप उसमें चेंज देखना कि काफी का बहुत सारे 60% स्टॉक उसमें चेंज हो जाते हैं। एंड दैट्स वाई म्यूचुअल फंड्स के अंदर में एनएवी इतनी नहीं गिरती जितनी जिन्होंने डायरेक्ट स्टॉक में ट्रेडिंग किया हो उनकी एनएवी गिर जाती है। तो क्वेश्चन बराबर है, बट पर्सन टू पर्सन आप डिस्कशन करो। हमारे साथ में, आरएम के साथ में चेंज करना है, बहुत अच्छी बात है, चेंज करेंगे। लेकिन फिर से वही क्वेश्चन बोल वाला आंसर है कि बहुत ज्यादा ब्रेव अभी नहीं होना है, क्योंकि इस अंधी लाट जैसे है ना, इसमें सब लोग, मतलब जो अच्छे हैं और बुरे सब लोग पिस जाते हैं। तो थोड़ा सा एक लोग क्या बोल रहे हैं कि एक एनालाइज होने दो, क्या रिएक्शंस हो रहे हैं लोगों के। तो कोई चीज भाग के नहीं जा रही कि मतलब 2 दिन में हम बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दिए। यू कैन गेट द अपॉर्चुनिटी इन नेक्स्ट 15 days ऑल्सो, बट यू कैन स्टार्ट टू रिव्यू द पोर्टफोलियो, दैट इज ट्रू। मिस्टर Can we have जयंत next नाग, question, please? या मिस्टर जयंत नाग, कैन बी चेंज पोर्टफोलियो टू लोअर एनएबी? तो सर पोर्टफोलियो टू लो, अच्छा मतलब आप एवरेज आउट की बात कर रहे हैं शायद। तो यस, करना है, हम लोग भी करेंगे। मैंने जैसे ऑलरेडी बताया कि इसके अंदर में थोड़ी सी स्टेबिलिटी दिखनी चाहिए, क्योंकि वो पर्सन सन की है। अभी सन के आदमी को इमीडिएटली हम ठीक नहीं कर सकते हैं, बट उसके अंदर में जो रिएक्शंस हो रहे हैं अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग उनके खुद की गवर्नमेंट में जो पार्लियामेंटेरियन लोग हैं, सीनेट से लोग हैं, वो लोग भी जब उसको लेटर लिखेंगे और डिस्कशन करेंगे, बहस होगी, देन ही रियलाइज। अभी एक दिन के अंदर में कोई भी आदमी सुनता नहीं है, बट वो बोल रहा है मैं मार्केट नहीं देखता हूँ, मार्केट नहीं देखता हूँ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, मार्केट गिर रहा है। लेकिन इतने लोग डोमेस्टेशन कर रहे हैं, तो आज नहीं तो कल उसको देखना पड़ेगा वो चीज। ऐसा होता नहीं है। पीपल इज नॉट इजीली एक्सेप्ट द, मतलब हार कोई अपनी बहुत जल्दी इजीली मानता नहीं है। अब ये 2-4 दिन चलेगा तो आएगा उनको समझ में। तो थोड़ा सा एक एटलीस्ट 2 वीक जाने दो, बट यस, यू कैन इंक्रीज योर पोर्टफोलियो इक्विटी एक्सपोजर बाई 5 to 10%। एक 3 महीने के अंदर में एक 20% अगर हमारा टारगेट है, तो आप 5-5% करके ऐड कर सकते। मिलिंद माली सर, एसआईपी डेबिट टुडे, यूनिट एलोकेशंस डेट। अगर एसआईपी अभी आपकी आज डेबिट हुई है, थ्योरेटिकली आज का एनएबी मिलना चाहिए, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम कल का, क्योंकि इसमें थोड़ा सेटलमेंट का केस होता है कि पैसा डेबिट हुआ है आपके बैंक से, बैंक में गया क्लियरिंग वाले के पास, लाइक एनएससी के पास। एनएससी जब पैसा एएमसी को देती है उस दिन की एनएबी मिलती है। तो ये क्या होता है कि कभी कभी 1 बजे अगर पैसा एएमसी में चला जाता है तो आज की एनएबी मिलेगी, लेकिन 100% कल की एनएबी जरूर मिलेगी। थ्योरेटिकली देखेंगे तो आपको आज की एनएबी मिलनी चाहिए, क्योंकि फ्राइडे, सॉरी, सैटरडे संडे मार्केट बंद था। जब भी किसी का पैसा कट होता है उसके नेक्स्ट वर्किंग डे का एनएबी मिलता है। आई होप आई गिव योर आंसर। माली सर। यस सर, थैंक यू। तो अभी हाँ इस केस में हम हाँ लोग अभी अभी मार्केट तो डाउन आ रहा है, हाँ तो अभी जो आपने बोला 5% हाँ तो हाँ, अगर टुमारो द डे आफ्टर टुमारो सेम सिचुएशन में रह रहा है, हाँ, तो 25 हजार 4 दिन में हम डाल सकते हैं क्या? डालना चाहिए। और मैं आपको हम्म एक चीज बताता हूँ हम्म कि डो जोन्स 6% डाउन था थर्सडे को, यस फ्राइडे को 6% डाउन था। अभी फ्यूचर में कोई 2% डाउन चल रहा है। कितना हो गया टोटल? 15। 15% डाउन विदाउट एनी, कंपनी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, इंडस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं है, खपत में प्रॉब्लम नहीं है, तो इंडस्ट्री सब कुछ वैसी ही चल रही है। इतना डाउन कभी लॉन्ग टर्म में रह नहीं पाता है। ये थोड़ा सा बाउंस बैक करेगा, लेकिन हम बाउंस बैक में हम बेच भी नहीं पाते हैं। तो आप बाई कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन कोई चीज जैसे डेली अगर समझो मैं कोई चीज को 5% घटा रहा हूँ, ठीक है, अब आप अपन भी इंजीनियर है, अगर मैं डेली कोई चीज को 5% घटा रहा हूँ तो 20 दिन में वो 0 हो जाएगी।
समझ रहे? तो ये कभी हाँ, ऐसा होता नहीं है, ये होता कॉमन नहीं है। सेंस वाली चीजें हैं कि पहले ठीक। 10 गिरता है, दूसरे दिन 5 गिरता है, तीसरे दिन 2 गिरता है, तीसरे दिन 4% बढ़ता है। हम्म। और घुमा फिरा के आप अगर देखोगे तो पूरे साल में 15 से 20% भी करेक्शन नहीं आता है, जो 15 ऑलरेडी हो चुका है। ओके। अब हाँ, तो थोड़ी सी क्या है कि मैच्योरिटी वाली बात है और हैंड होल्डिंग वाली बात रहती है। बट आप टीवी दिन भर देखोगे, कोई भी, मतलब आप नहीं, मतलब सभी के, मेरे सभी को मेरी सलाह है, अगर आप हर बार वही न्यूज देखोगे, यूट्यूब देखोगे, तो दुनिया भर के लोग अलग अलग बातें करते हैं। और उसमें कुछ ऐसे भी सिरफिरे लोग रहते हैं जिनको वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। जैसे मेरी का अगर समझो शॉर्ट पोजीशन है, तो मैं ऐसी नैरेटिव बनाऊंगा मार्केट में कि आदमी पैनिक हो जाए और बेच दे। ये ध्यान में हम्म। रखो, मैंने, मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है ये सब। तो हम्म। एक ग्रुप होता है कि समझो जॉर्ज सोरोस को बोलते हैं मोदी जी कि ये अपना इंडिया को शॉर्ट करता है, बराबर है? तो वो क्या ओके। करता है, सब जगह से नेगेटिव न्यूज, ये गवर्नमेंट खराब है, ऐसा है वैसा है, शॉर्ट कर दो। तो ऐसे भी लोग होते हैं जिनको हम हेज फंडर बोलते हैं। तो ऐसे भी लोग होते हैं जिन्होंने समझो शॉर्ट पोजीशन ली है 10-50 बिलियन डॉलर की। तो वो ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं कि सब लोग बेच दें और नीचे जाके वो हम्म। खरीदी कर लें। ओके। तो इसलिए अगर आप ज्यादा टीवी एनालिसिस्ट, यूट्यूबर को देखोगे, और जब मालूम पड़ता है कि इसका वेस्टेड इंटरेस्ट था या ये तो इसी कंपनी का ही मतलब पार्टनर था और ये चीजें बता रहा है, तो इतने लेवल पे आप लोग मतलब तहकीकात नहीं कर सकते। ये मेरा मेरा अनुभव है। ओके। इसलिए और न्यूज वगैरह ज्यादा, हमारा जिसमें इंटरेस्ट है, जिसके पास तुम्हारा इंटरेस्ट है, उससे बात करो। और जो एसआईपी का डेबिटेड अमाउंट अगर छुट्टी के दिन फॉर एग्जांपल सैटरडे को गया है, हाँ। तो सैटरडे संडे तो आज का उसका मंडे का यूनिट अलॉटमेंट होता है क्या? या यस यस। या नेक्स्ट वर्किंग डे। नेक्स्ट ओके। वर्किंग डे। ओके, थैंक यू। पिछले में हम कभी नहीं जाते, आगे ही जाएंगे इसमें। ओके। Can we have next question, please? या और डेरे सर ने क्वेश्चन स्टॉक का किया। सर स्टॉक्स में मैंने बताया, स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी बहुत रहती है। गो थ्रू ईटीएफ और इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड। अभी डायरेक्ट स्टॉक के बारे में अभी हाल फिलहाल 15 दिन मत सोचो। और आपका कोई कन्विक्शन है तो आप ले सकते हो, आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ दैट। बट मेरा अनुभव है स्टॉक्स में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी रहती है और वो न्यूज बेस बहुत ज्यादा हो रहा है। एनी क्वेश्चन डायरेक्टली यू कैन आस्क। एनी मोर क्वेश्चंस? So recently, I come to know that lot many people cannot attend the physical meeting we have done on 22 March at Remy Grant. आज भी हमने मीटिंग रखी है। तो कुछ लोग बिजी रहते हैं ऑन द, क्योंकि वर्किंग आवर में रखा है। लेकिन कैसा होता है कि वर्किंग आवर में अभी एक हम एक सैटरडे भी एक मीटिंग रखेंगे। सो एवरी टाइम एवरी पर्सन कैन नॉट ज्वाइन। दैट्स वाई वी आर गोइंग टू मेक वन वीडियो, एक शॉर्ट वीडियो, उसको हम क्लिप्स करके शेयर करेंगे आप लोगों को, जो लोग नहीं सुन पाए, जिन लोगों ने कुछ मिस कर दिया है। तो वी हैव एक्टिवेटेड आवर इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड लिंक्डइन चैनल। तो मैं वहां पर भी शेयर करूंगा एंड आई विल सेंड यू वन ईमेल। तो आप हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो एक क्लिप्स वीडियो, जो आज हमने जैसे बात करी है उसके बारे में, एक छोटा 5-7 मिनट का हम लोग वीडियो या एक प्रेजेंटेशन डालेंगे। सो दैट दोज हु हैव मिस और दोज हु वांट टू शेयर विथ योर फैमिली फ्रेंड्स, जैसे सभी लोग फैमिली वाले क्लाइंट्स हैं तो एक ही आदमी घर का अटेंड करता है, फैमिली में किसी और को बताना है तो यू कैन शेयर दीज आर्टिकल्स विद देम। सो प्लीज लाइक आवर इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल्स प्लस लिंक्डइन चैनल्स। And we are sending you the send this video after editing it. Thank you very much for coming to time on the working day. But मुझे लगा ये necessary है because lot of confusions among the investors and it is necessary also. Thank you very much. Should I close? अगर leave
लास्ट क्वेश्चन अगर किसी को है तो, नहीं तो फिर क्लोज करो. And everybody is having right to ask question one on one with the RM assigned to you. ऐसा जरूरी नहीं कि इसी मीटिंग में है, but any time people are available to give you the guidance. Thank you.